شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له. حاضرین جلسہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام، سب سے پہلے جناب مولانا فضیلۃ الشیخ امام الحق فلاحی صاحب کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ شیخ محترم نے لگ بھگ 1 مہینہ پہلے سے مجھ سے رابطہ کیے اور شیخ محترم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند کلمات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. گاؤں کے تمام لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا، اس ناچیز بندوں کو، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. چلیے آج کی محفل میں، آج کس اجلاس میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ اصل میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. آئیے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی گئی اور یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے، مشغول تھے، لگے ہوئے تھے. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس
کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو پھر زور سے دبوستے ہیں، پھر کہتے ہیں اے محمد پڑھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام زور سے دبوستے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ دبوستے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پڑھ۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں میں کیا پڑھوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی امی تھے، ان پڑھ تھے، اب پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوٹڑے سے پیدا کیا، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو نہیں جانتا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو چیز سکھائی، وہ سکھایا جو نہیں جانتا۔ یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرا گزری میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور اپنے گھر جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے اور کہتے ہیں اے میری بیوی زملونی زملونی زملونی، اے میری بیوی، اے میری بیوی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے دہشت ہوتی ہے، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اے میرے شوہر آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، آپ اتنے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ اے میرے شوہر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دہشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماجرا اپنی بیوی کو سناتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کھانا کے لیے ماں بہن سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جا کے کھانا کھا لیں۔ کھانا کے لیے ماں بہن سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد جا کے کھانا کھا لیں۔ پورا ماجرا سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد حضرت خدیجہ کہتی ہے اے میرے سردار، اے میرے شوہر، میرا اللہ آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے، اللہ آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ آپ تو یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اللہ آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں جاتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے شوہر کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اس کے پاس جاتے ہیں اور پورا واقعہ سناتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل پورا واقعہ سننے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس نبی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا تھا، یہ وہی نبی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ رہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالیں گی۔ اس کے بعد محمد کھانا کے لیے مدرسے کے طرف سے بنایا گیا، آپ لوگ گھر نہ جائیں۔
खाना मदरसे के तरफ से बनाया गया, आप लोग अकबर भाई के दरवाजे पर जाए, खाना खा लें। फिर बाद में ऐसा ना हो कि नहीं वो हमको नहीं दिया, नहीं पूछा। आप लोग जल्द से जल्द, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो भी है, खाना के लिए मदरसे की तरफ से बनाया गया है, आप लोग के लिए यही बनाया गया। आप लोग जल्द से जल्द जाए, खाना खा लें। उसके बाद जो है अल्लाह के नबी कहते हैं कि क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो कहते हैं, वर्का बिन नौफल कहते हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की चचाज़ाद भाई कहते हैं कि हाँ, आपसे पहले भी जितने भी अंबिया आए सबके साथ यही हाल हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगर अनपढ़ इंसान को अगर कोई उर्दू की किताब उनके हाथ में रख दी जाए, उसे कह दिया जाए पढ़िए, तो क्या वो पढ़ पाएंगे? हरगिज़ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर किसी जाहिल को अगर इंग्लिश की किताब उसके हाथ में रखी जाए, उसे कह दिया जाए आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो क्या वो पढ़ पाएंगे? हरगिज़ नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? क्या पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ क्या आपस में बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकते हैं। बढ़िया चले। यकीनन वही लोग नसीहत हासिल करते हैं जो अक्लमंद होते हैं। मारो दे कभी भी एक जाहिल और एक पढ़ा लिखा कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता है। और जिस इंसान के पास इल्म ना हो, गोया कि वो मुर्दा है, वो मुर्दा है, जिंदा रहने से उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर एक जिंदा इंसान समाज के अंदर रहता है, अगर एक जिंदा इंसान इस दुनिया के अंदर रहता है, तो उसकी जरूरत पड़ती है एक इंसान के पास अगर वो जिंदा तो है लेकिन उसके अंदर तालीम नहीं है, वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो मुर्दा से को तशबीह दी है कि गोया कि वो मुर्दा इंसान है। मेरे प्यारे साथियों, चलिए मैं आपको और आगे लेकर चलूं। ये तो इंसान के अंदर फर्क है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर जानवरों के दरमियान भी फर्क को बता दिया है। एक होता है कल्बे मुअल्लम यानी सिखा हुआ कुत्ता, और एक होता है कल्बे आम, जैसे चौराहे पर घूमता हुआ नजर आता है। उसी तरीके से अगर आम कुत्ता बर्तन में अगर मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा धोना पड़ेगा, 7 मर्रात उसको 7 मरतबा धोना पड़ेगा। पहली मर्तबा या आखिरी मर्तबा उसको मिट्टी से धोना पड़ेगा। लेकिन अगर कल्बे मुअल्लम सिखा हुआ कुत्ता अगर आपके लिए शिकार करके लाए, पकड़ करके लाए, तो उसका शिकार करना जो लेकर आए तो हम उस चीज को खा सकते हैं, उसका खाना हलाल है, उसका खाना जायज है, हम खा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब गौर कीजिए तालीम की अहमियत क्या है, तालीम की फजीलत क्या है। अगर समाज के अंदर, अगर माशरे के अंदर कोई पढ़ा लिखा है तो उनकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर समाज के अंदर, अगर माशरे के अंदर कोई अनपढ़ है, कोई जाहिल है, तो उनकी अहमियत ज्यादा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, उलमा की कदर कीजिए, तालिब इल्म की कदर कीजिए। आप उनकी अहमियत नहीं देते हैं। सड़क पर अगर तालिब इल्म चलते हैं, आप कहते हैं देख लीजिए ये तालिब इल्म है, ये लोग मौलवी बनेंगे, मौलवी बनने के बाद वही 5,000 कमाएंगे, वही 10,000 रुपया कमाएंगे, इनकी तनख्वाह वही 12,000 होगी। मेरे प्यारे साथियों, हम उनकी इज्जत को, उनको इज्जत की नजर से नहीं देखते हैं, वे उनको हकीर नजर से देखते हैं। मुसलमानों, उनकी कदर कीजिए। आपकी वफात के बाद, आपके इंतकाल होने के बाद, आपके मर जाने के बाद यही तालिब इल्म है, यही उलमा किराम है। आपके मर जाने के बाद जो है आपके जनाजे की नमाज यही उलमा किराम पढ़ाएंगे।
कोई प्रॉपर्टी वाला नहीं आएगा, यही 10,000 रुपये कमाने वाला, यही तालिब इल्म, यही कुरान और हदीस के इल्म को सीखने वाले तालिब इल्म ही, यही हुफ़ाज़ किराम ही आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, यही मेहराब को संभाल रहे हैं, यही मस्जिद को संभाल रहे हैं, यही मदारिस को संभाल रहे हैं। अगर ये उलमा किराम खत्म हो जाएंगे तो हमें दीन की समझ नहीं आएगी। ये उलमा किराम खत्म हो जाएंगे तो दीन के बारे में बयान करने वाले नहीं होंगे, दीन के बारे में बयान करने वाले, दीन के बारे में समझाने वाले नहीं आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया की मीरास है। क्योंकि अंबिया के गुजर जाने के बाद, सहाबा किराम के गुजर जाने के बाद, ताबीईन के गुजर जाने के बाद, दीन की खिदमत करने वाले, दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले यही उलमा किराम है। मुसलमानों, उलमा किराम की कदर कीजिए, उलमा किराम को इज्जत दीजिए, जहाँ पर भी देखिए उलमा किराम को सलाम कीजिए। उलमा किराम का मर्तबा बहुत ज्यादा है। चलिए मैं आपको हदीस से वाज़ेह करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो इंसान ऐसे रास्ते को तलाश करता है, लैब देखे लिमिट थोड़ी करेगी, लैब डायरेक्शन ऐसे रास्ते को तलाश करता है, ऐसे रास्ते पर चलता है जिसे वो इल्म दीन को सीखता है, और ऐसे रास्ते को तलाश करता है और इसकी मतलाशी में लगा रहता है, इसकी जुस्तजू में लगा रहता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का रास्ता को आसान कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, जो कुरान और हदीस के इल्म को सीखता है और उसकी जुस्तजू में लगा रहता है, उसकी मतलाशी में लगा रहता है, ऐसे लोगों के लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती रहती है, परिंदे भी दुआ करते हैं, इंसान भी दुआ करते हैं, फरिश्ते भी दुआ करते हैं, यहाँ तक कि फरिश्ते अपना पर बिठा देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन यनफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यद'ू लह। इंसान के मर जाने के बाद, इंसान के वफात हो जाने के बाद, इंसान के इंतकाल हो जाने के बाद उसके अमल का जो सिलसिला है वो बंद हो जाता है। तीन चीजों के अलावा वो तीन चीजें क्या है आइए बताता हूँ। सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया, और इल्म यनफ़उ बिही, और इल्म यनफ़उ बिही, या इल्म नाफ़े, ऐसा इल्म जो उसने सीखा हो या लोगों को सिखाया हो, या कोई इमाम साहब खुतबा दे रहा, या किसी को उसने वाज़ नसीहत की हो और उसका काम जारी व सारी हो, तो इंसान के मर जाने के बाद, इंसान की वफात हो जाने के बाद जो है उसका इल्म नाफ़े इल्म उसका जारी व सारी रहता है, उसको सवाब मिलता रहता है। और तीसरी नंबर पर क्या है, ये ऐसी औलाद छोड़ के जाए, ऐसे बेटे छोड़ के जाए, ऐसी बेटियां छोड़ के जाए जिनकी वफात के बाद, उनके इंतकाल हो जाने के बाद जो है उनके लिए दुआ करें, उनके लिए माफ़िरत की दुआ करते रहे। मेरे प्यारे साथियों, वो अपने बेटे को कॉलेज में पढ़ाने वालों, वो अपने बेटे को स्कूल में भेजने वालों, मदारिस से दूर रखने वालों, तुम सोच रहे अगर मेरा बेटा अगर मदारिस में पढ़ेगा तो वही 5,000 रुपया कमाएगा, अगर मेरा बेटा मदारिस में पढ़ेगा तो वही 10,000 रुपया कमाएगा। मुसलमानों, एक कम से कम एक औलाद को, एक बेटे को हाफिज़ कुरान तो बनाओ, एक बेटे को कम से कम आलिम दीन को बनाओ, क्योंकि आपकी वफात के बाद, आपके इंतकाल हो जाने के बाद कम से कम आपकी नमाज़ जनाजा आपका बेटा पढ़ाए, आपकी वफात के बाद, आपके इंतकाल
मग़फ़िरत की दुआ करें। कम से कम आपको ये नसीब तो हो कि मेरा बेटा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए। मुसलमानों, तालीम की अहमियत पर गौर करो। अगर कपड़े से पता नहीं चलता है कि इस इंसान के पास इल्म है या नहीं है, कपड़े से, दौलत से, माल से नहीं पता चलता है इंसान के अंदर इल्म है या नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपको गौर करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आप अहले इल्म से जुड़े रहें। जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक आपको फायदा पहुंचता रहेगा, दीन की बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन जब आप उलमा से कट जाएंगे आप तक दीन की बात नहीं पहुंचेगी। मुसलमानों, उलमा की कदर करना सीखिए। अगर उलमा किराम नहीं रहेंगे तो दीन की समझ आपको नहीं होगी। मुसलमानों, उलमा की कदर कीजिए, उलमा को बुरी नजर से न देखिए। उलमा अगर कोई मौलवी, अगर मस्जिद का इमाम है, अगर मस्जिद का खतीब है, अगर इमाम साहब अगर लेट आ रहे हैं, हम उंगलियां दिखा रहे हैं, हम उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, मुसलमानों ने कहाँ का इंसाफ हो रहा है? मुसलमानों, आज हमारा ज़मीर मर चुका है। आज में शर्म क्यों नहीं आती है? आज में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या हमारी जरूरत पड़ती है? क्या मौलवी साहब की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या मौलवी साहब के बाल बच्चे नहीं होते हैं? कि इमाम साहब के बाल बच्चे नहीं होते हैं? क्या मौलवी इमाम साहब की जरूरत नहीं है? कि इमाम साहब नहीं जा सकते हैं? मुसलमानों, इमाम साहब की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए। चाहे मस्जिद के इमाम हो, चाहे किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे कोई कहीं का भी रहने वाला हो, उनकी कदर करना सीखिए। मैं यही बोलूंगा, उलमा की इज्जत करना सीखिए। जब तक आप उलमा से जुड़े रहेंगे तब तक आप तक दीन की बातें आती रहेंगी। अब वक्त हमें इजाजत नहीं देता क्योंकि चिट्ठी आ चुकी है कि आपका वक्त खत्म हो गया है। इन्हीं चंद बातों को खत्म करना चाहता हूँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सभी को जितनी सारी बातें कही गई हैं, ऐ अल्लाह तो तमाम बातों पर हम सबको अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।